आज फिर for the second time we are here alone. Nobody is here. Nobody, literally in the building nobody is here. पूरी बिल्डिंग खाली है and I am alone and happy. It's really good to see happiness when you are alone. Now I am just understanding what aloneness is. Not loneliness. Lonely and alone are two different words for me. पहले ऐसा होता था, आई वॉज लोनली, दुखी हो रखा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट नाउ ऑल कूल, ऑल ऑफ इट डज मेक सेंस फॉर मी. अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं, बट इट्स डे 44 बेबी. वी विल शूट टुडे एंड आज मुझे पता है कि रोलिंग है, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ. आई एम शूटिंग अलोन अगेन एंड आई एम फकिंग लविंग अलोन शूट्स. आई जस्ट लव aloneness. I just love solitude. No matter how hard I am struggling with it, struggling with the frames, struggling with the things, struggling with anything, but I love it. I just love doing this shit. Abhi it is really cozy and really bad about the weather. It's day 44 for our self improvement series. Please guys, like, share, subscribe, follow, whatever you can do it, because I'm not stopping, neither telling you to stop. कोई जुड़ना चाहता है, कोई द सेम चीज़ कोई मेरे साथ करना चाहता है, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी. यू कैन जस्ट, आई हैव माई socials in the description. You can just ask me or do whatever the fuck you want. Just do the thing you want to do. It is really simple to do all of it. अभी मामला ऐसा है कि पसीने आ रखे हैं भयंकर. आपको फ्रेम में बहुत ज़्यादा पसीना दिख रहा होगा, and I know that, but I am not going to stop recording until I am done. It will be a 10, 12, 13, 14 minutes video, and you have to listen to it completely. It is very important for you to listen to what my words are. Listen, understand, react, do the work. It's really important for you to do the work. So what do? We work. Abhi the thing is, I'm really happy with my life. सीधी सिंपल बात, नो बकवास. अभी आई वॉज अंडरस्टैंडिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स. इट्स इवनिंग, वी आर नॉट शूटिंग इन द मॉर्निंग टुडे. मॉर्निंग में आई हैड सम वर्क, और आफ्टरनून में देयर वाज सम इश्यूज विद द स्टूडियो, सो वी हैड टू फिक्स इट. उस टाइम के लिए वी डिडंट गॉट द टाइम टू शूट, एंड नाउ आई एम शूटिंग हियर अलोन. My friend which is the main director or whatever you want to call, cameraman or whatever it is, तो वो अपने काम पे है अभी. and I just got free. I had my first meal of the day right before shooting. तो मैं वो सब करने में लग रखा था. मैं खाना वाना खाया मैंने, और अब मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ टू शूट. आज नो वर्कआउट, नो रन, नथिंग. There will be days in your journey when you will not be doing anything just because you are overloaded with work. तो जब आप ओवरलोड करोगे वर्क के साथ, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, एंड विच इज़ रियली नॉर्मल टू डू, और विच इज़ रियली नॉर्मल टू बी डन फॉर. सीधी सिंपल सी बात है, आपको आपका काम सबसे प्रायोरिटी पे रखना होगा. दैट्स वॉट रियली मैटर्स. नथिंग मैटर्स. नो बॉडी, नो peace, nothing matters more than money in my understanding of things. तो अभी सुबह से बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जिसमें मुझे पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा नीड हुई है. पेशेंस, परसिस्टेंस, सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट पेशेंस टुडे. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ पेशेंस वर्क and how can you be more patient in your life. You have to work and you have to be patient with it.
सीधी सिंपल सी बात है, इट्स बिन 44 days वी आर रेगुलरली रिकॉर्डिंग, एंड दैट नीड्स कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. We are doing the work very quietly, very patiently. We are not telling anyone about this till the day 180. I will not be able to tell anybody. मैं नहीं बोलूँगा. I will do the work silently and then I will show it up कि this is my 180 days work. Look at it, ignore it, I don't care. This is what I have been doing for the past 180 days regularly with consistency. And believe me, trust me, I have never been this consistent in my life. What does it take? अभी देख लो हालत क्या हो रखी है पूरे शरीर की. Lots and lots of fucking sweat. Lots of sweat because it's hot right here. Sitting in the spotlight, heating, and again no fan, nothing working. Just because we need a crisp voice so that you can understand what does it take. अभी आज दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई यहाँ पे. देयर इज लीकेज हियर, देयर इज जस्ट वाटर फ्लोइंग देयर. बहुत मैस हुआ पड़ा है. ये जगह पूरी मैस हो चुकी है इतने टाइम में. गंदगी, कचरा, बिकॉज वी आरंट एबल टू डू साफ सफाई जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लोइंग हियर एंड देयर. जस्ट बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा है तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का. तो उस वजह से वी हैवंट बीन एबल टू डू द वर्क ऑफ क्लीनिंग द स्टूडियो. तो प्रॉब्लम यहीं आ रखी है कि एंड इन दिस केओस, इन दिस मेस, वी आर नॉट मूविंग एट ऑल. We are just at our places. We are just doing the work what is needed. That takes patience, my boy. That really takes some patience. I am doing a month of fasting. सावन है, व्रत रखे जा रहे हैं. और मेरे व्रत रेगुलर व्रत जैसे नहीं होते हैं. आई डू इट डिफरेंटली. आई डोंट ईट द होल डे. दैट इज़ वॉट आई से व्रत. आई हैव 2 चायज, एक सुबह एक शाम को, and then see the meal. I don't do any of fruits. I don't eat any of the vegetable. वो जो भी व्रत में अलाउड होता है वो सारी चीज़ें, खिचड़ी एंड ऑल, I don't do any of that shit. I just keep my hunger. That makes me feel alive more. That's what we do. We take ourselves into the fucking world out there which is brutal. And the man who can survive over his hunger can survive anything. मैं कह रहा हूँ, ये mark my words. The man who can survive hunger can survive anything in the world. Because it is the most basic survival instinct. Hunger is the most basic survival instinct. अगर आपको खाना नहीं मिलता, your mind shuts off. It doesn't work. And mine is working with its full capacity. I am working hard. I am going to the gym. I am working out. I am doing cardio. I am doing all the work that's needed. Anything I do, it's not craving for. It's all, I'm just being ignorant about my hunger. मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे को भूख लगती, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ पूरी तरीके से भूख को, पूरी तरीके से. ये सारी चीज़ें मेरे को इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा. द लीकेज, द वाटर, इट इरिटेट्स मी. मैं इग्नोर कर देता हूँ सारी चीज़ें. आई जस्ट कम एज द मोस्ट इग्नोरेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू एनी डिस्कम्फर्ट. दैट्स हाउ आई कोप अप विद इट. सीधी सिंपल सी बात है. इट इज़ नॉट अ बिग डील टू बी पेशेंट. नहीं रुक पाते 10 मिनट, किसी का वेट नहीं कर पाते, बार बार फ़ोन करते रहते हैं. इट्स नॉट हाउ इट्स डन. सीधी सिंपल सी बात है. दिस कांट बी डन दैट वे. जहाँ भी हो 2 मिनट, 2 सेकेंड, 25 सेकेंड सोचो बैठ के कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, एंड हाउ कैन आई बी पेशेंट इन सिचुएशंस विच आर रियली हार्ड टू बी पेशेंट विथ. किसी से रोड रेज हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, नो, यू डोंट नीड टू फाइट एनी टाइम.
डोंट फाइट अंडर 1 लाख रुपीज़। सीधी सिंपल सी बात, 1 लाख के ऊपर का लफड़ाओ, मार दो, काट दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट अंटिल देन कीप योर काम, कीप योर माइंड स्टेबल। इट रियली नीड्स टू बी स्टेबल। In this fucking sweat, I am able to talk all my mind out. Think of me. What am I going through? बंदे बार बार ये हाथ पहुँचा पे जो बहुत गर्मी लग रही, यूं करने लगते हैं। That's not how it's done. You are sweaty, you turn on the fan. And if you don't want to turn on the fan, be in the sweat. Just be at it. Don't worry about how you are looking. I'm not worrying about any of that. I'm not worrying about how am I looking. I'm just doing the work, what that should be needed, that should be done, and I'm doing it. Nobody can stop me. It is what it is. सीधी सिंपल सी बात, पेशेंस रखना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एक टाइम मेरे जीवन में ऐसा आया जब मेरे को पेशेंस की कीमत समझ में आने लगी। आई वॉज अ वेरी chaotic पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था, बात में परेशान होता था। एंड आई सी पीपल लाइक दैट। बात में परेशान होना, छोटी छोटी सी बात में ट्रिगर होना, इट्स नॉट हाउ इट्स डन गाइस। सीधी सिंपल सी बात है, 5 सेकेंड वहाँ जिस जगह पर आप हो, जिस डिसोरिएंटेशन में आप हो, आप वहाँ रुको 5 सेकेंड के लिए, एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड रुको एंड देन थिंक अबाउट व्हाट द सिचुएशन इज एंड हाउ आर यू डीलिंग विद इट। आर यू अ मच्योर गाय, यू कैन डील विद इट पेशेंटली, और यू आर अ chaotic guy, a young blood, which I am also. I am 23, I will be turning 23, I am 22, I am young blood now. But मुझे पता है where to lash on and where to stop. It's really easy. लाइफ के फंडे बहुत इजी रखो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। लाइफ के फंडे आपके बहुत इजी होने चाहिए। इफ़ इट्स नॉट इजी, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, एंड कॉम्प्लिकेटेड मीन्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। प्लीज़ डोंट लिव इन कॉम्प्लिकेसी, जस्ट लिव इन ईजीनेस। बी पेशेंट टूवर्ड्स एवरीवन अराउंड यू। डोंट गेट ट्रिगर्ड बाय व्हाट पीपल से कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ये बहुत गलत चीज़ है। नहीं, जो भी उसने बोला उसकी मर्ज़ी थी। आई विल बी पेशेंट विद माई सेल्फ। आई विल नॉट बी रेजिंग ओवर एनीबडी। दैट्स इट। कॉन्वर्सेशंस में भी आपको रुकना पड़ेगा, लाइफ चॉइसेस में भी आपको रुकना पड़ेगा। देयर वॉज अ इंसिडेंट इन माई फैमिली इन विच somebody really close to me got hurt by somebody in my family. दूर का रिश्तेदार, ऐसे मान लेते हैं, दूर का रिश्तेदार हर्ट माई क्लोजेस्ट रिश्तेदार। ठीक है, एंड द पर्सन, नोबडी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम स्टॉप्ड द दूर का रिश्तेदार। द थिंग वॉज डन एट नाइट एंड देन आई हैड अ कॉल। मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है बाय माई मदर। एंड देन अगले दिन आई वॉज देयर स्टैंडिंग and I said, sir, please don't do it. And if this happens again, I won't be coming in morning, I will come at night only, and I will fuck everyone up. That's it. That's what that situation has needed, and that's what I have done. I look him in the eye and said, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये दोबारा हुआ तो मैं सुबह तक का वेट नहीं करूँगा, मैं रात को ही आऊँगा। और अगर मैं रात को आ गया, यू विल ऑल बी फक्ड। सीधी सिंपल सी बात है, मेंटली एंड फिजिकली टू। जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है, दैट हैज़ टू बी स्टॉप। दैट्स इट। वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। दैट्स इट। डन फॉर द डे। साइनिंग ऑफ, गौरव।